E4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद अभी तक 11 महीने में सरसों के तेल की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुकी है, जिसके कारण लोगों का तेल निकल गया है। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल और ब्रांडेड चाय की कीमतों में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। चाय की पत्ते की बात करें तो करीब 150 रुपये प्रति किलो ब्रांडेड चाय के दाम बढ़ चुके हैं। सरसों के तेल के दाम बढ़ने का बड़ा कारण बताया जा रहा है कि राजस्थान की सरसों मिलें बंद हैं, जहां से पूरे देश में से अधिक सरसों की सप्लाई होती है। वहीं रिफाइंड ऑयल के दाम अर्जेंटीना में हुई स्ट्राइक और अन्य देशों में लॉकडाउन के कारण प्रोडक्शन में आई कमी के कारण बढ़े हैं। चाय के दाम भी इसलिए बढ़े हैं क्योंकि इसकी भी प्रोडक्शन पर खासा असर पड़ा है। अमृतसर की बात करें तो हर महीने लगभग अमृतसर में ही 300 से लेकर 400 टन तक सरसों का ऑयल की खपत होती है और रिफाइंड ऑयल की बात की जाए तो इसकी खपत जो है 500 टन से अधिक बताई जा रही है। आखिरकार तेल की कीमतें कम होंगी या नहीं, इसी को लेकर हमने लक्ष्मी कोल्लू घर के मालिक पृथ्वीराज से बात की है और उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिरकार सरसों की तेल की कीमतों में लगातार इजाफा क्यों हो रहा है। आइए बताते हैं आपको उनका क्या कहना है। हमारे साथ हैं लक्ष्मी कोल्लू घर के मालिक जो हैं पृथ्वीराज। इनसे बात करते हैं कि ये सरसों के महंगे होने का क्या कारण है। पृथ्वीराज जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। पृथ्वीराज जी आप थोड़ा दसोगे सरसों का तेल ਜਿਹੜਾ करीब 110 रुपये लीटर ਸੀ लॉकडाउन के दौरान, तो हुण जो लॉकडाउन खुल गया सब कुछ सामान्य हो गया, तो सरसों के तेल की कीमत करीब 150 रुपये प्रति लीटर तो जार पहुँच गई। रीज़न की है जी? क्योंकि देखो जी, ये परचून 150 तो ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ परचून ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ 160 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 175 ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ MRP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ। ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਫਸਲ ਨਵੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਬੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਟੁੱਟੀ, ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਰੇਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮੰਡੀਆਂ ਰੇਟ ਸੀ 3900 ਲੈ ਕੇ 4000 ਤੱਕ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ MRP ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ MSP ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਸੀ 4425 ਰੁਪਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4425 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਵਾਇਆ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ 3900 ਰੁਪਏ, ਮੰਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 4425 ਰੁਪਏ। लॉकडाउन का किसान फायदा होया 500 रुपये। किसान ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। किसान ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। 4425 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ 4000 ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੀ ਗਈ ਵਾਇਆ ਬੈਂਕ। ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਬਾਨੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ ਫਸਲ, ਅਡਾਨੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਨੋਟ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ। ਕੇਵਲ ਸਰੋਂ ਖਰੀਦੀ। ਉਹ 10,000 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਸਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਪੈਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਸਾਧਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਰੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਉਸ ਸਰੋਂ ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੇਟ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ। सरकार ने MSP नहीं सी खरीदा। सरकार ने MSP नहीं सी खरीदा। उन सरकार को उपभोक्ता का ध्यान भी रखना पड़ता है और किसान का भी रखना पड़ता है। किसान की वो इनकम बढ़ाना चाहती है तो उसको MSP खरीदना पड़ेगा। इस समय मैं आपकी जानकारी दे दूं, सरकार की वो 2020 के सीज़न में जो मार्च का सीज़न 2020 का था, MSP सरकार की 4425 थी और इस समय सरकार ने ये 21 में 4650 कर दी हुई है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन तब सरसों का तेल हम बात कर रहे हैं सस्ता क्यों था और आज इतना 1.5 गुना लगभग दाम हो गया, उसका क्या रीज़न है?
उसके बाद क्या हुआ जी, कोरोना चल रहा था, लोग घरों में बैठे थे, इतनी मांग निकल रही थी, हम लोगों को सपोर्ट भी सरकार ने की कि फैक्ट्री खूब चलाओ। हमको सरकार मतलब कहता डीसी ऑफिस से फ़ोन आया कि भाई आपकी फैक्ट्री दिक्कत तो नहीं चलाने की। हमने खूब फैक्ट्री चलाई। उस दरमियान लोगों की कंजम्पशन में गई, घर बैठ के लोग खा रहे हैं पकौड़े तल रहे हैं और तेल की कंजप्शन बढ़ गई। बिल्कुल, ये सारा कंजप्शन बढ़ने की वजह से मामला गड़बड़ हुआ। अब धीरे अब ये पता तो लगता नहीं भी कंजप्शन बढ़ गई है, अब ये पता तो लगता है जब स्टॉक ख़त्म होता है। अभी वो स्टॉक बहुत हल्का हो गया और सरकार ने जल्दी बेचा भी नहीं, कि जिसे सरकार चाहती थी कि रेट ऐसे बन जाएं जो एमएसपी से ऊपर चले जाएं। तो सरकार ने बहुत धीरे माल बेचा है, मंडियों में माल खत्म हो गया, उसकी वजह रेट बढ़ गया, कंजम्पशन बढ़ चुकी थी। तो इसका मतलब किसानों को फ़ायदा देने के लिए ये अपना बाद में तो कंज्यूमर के ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया है। थोड़ा बहुत कह सकते हैं। जो कंज्यूमर तो ऐसा ना एक परिवार लेगा, मान लो आपका परिवार है 4 किलो ले लेगा, उसको फ़र्क पड़ेगा 100 रुपये का, लेकिन किसान को तो हिसाब से हज़ारों रुपये और लाखों तक पहुंच जाते हैं उनके लिए। तो अच्छा, तो ये सरसों की सप्लाई कहाँ से होती है? तो क्या इस बार सरसों की सप्लाई कम है इसलिए सारा सामान महंगा है? लास्ट ईयर भी सरसों की फसल बहुत अच्छी कहते थे, सरकारी आंकड़े भी कहते फसल बहुत अच्छी है। इस बार भी फसल बहुत अच्छी कह रहे हैं। पिछली बार जिस हिसाब से सरकारी आंकड़े थे, यहाँ लोगों का, आम व्यापारियों का अंदेशा था महंगा नहीं होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ कोरोना में कंजम्पशन बढ़ने की वजह से मेरी निगाह में पूरा महंगा हुआ है। तो ये सरसों आती कहाँ से है? ज़्यादा सरसों आती पंजाब में होती है या किसी स्पोर्टिंग राज्य से आती है? सरसों पंजाब में बहुत कम होती है। यहाँ हमारा किसान जो है धान और गेहूं के पीछे पड़ गया है, तेल बीज बहुत कम बीजता है। सरसों राजस्थान में मेन प्रोडक्शन, राजस्थान, हरियाणा, एमपी और उसके बाद गुजरात, असम, इधर होती ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है जिस तरह दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कुछ ये मिलें बंद हो गई हैं या इसमें मिलावट भी बढ़ी है? कोरोना दौर जब कुछ कम हुआ था, कोरोना के 4-5 महीने बाद जब तेल ज़्यादा महंगा हो गया तो बहुत मिलावट हुई है जी। उसमें सस्ते तेल जो कोई बहुत फ़ौरन से आते हैं वो सब लोग मिलाते हैं जी। अच्छा, सरसों में क्या मिलावट होती है जी? देखो जी, मैं पूरी जानकारी तो नहीं है क्योंकि मैं जिस बंदे को ध्यान हो तो उससे देता है, लेकिन फिर भी सुनने में आता है कि चावल का तेल, सोयाबीन का सस्ता तेल, वो आमतौर में ज़्यादा मिलावट होती है। अच्छा, ये तो सरसों की आपने बात बता दी है क्यों महंगी हुई है, ये लोग खाने लगे थे। रिफाइंड ऑयल भी काफ़ी महंगा हो गया है, उसका क्या रीज़न है? क्या जो इसका सोया ऑयल है ये बाहर से आता है? क्या रीज़न है उसका महंगा होने का? रिफाइंड जो है जी, वो उसका भी थोड़ा रीज़न ये भी हुआ है कि बीच में जब हमारी बंदरगाहें बंद पड़ी थी तो गैप पीरियड आ गया। गैप पीरियड से वो जो माल उनके पास पड़े भी वो आ नहीं पाए। दूसरी बात, फॉरेन में भी ये पंगा, ये फॉरेन में भी कोरोना का चक्कर हुआ, वहाँ भी मिलें बंद हो गई। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ भी मिलें बंद हुई क्योंकि वहाँ भी लॉकडाउन था और प्रोडक्शन ही नहीं हुई। कंजम्पशन तो चलती रहती है, वो तो रुकती नहीं है। और कुछ ये भी सुनने में आ रहा है कि अर्जेंटीना में कोई हड़ताल हुई है, पता नहीं किसानों की हड़ताल है कि यहाँ मजदूरों की हड़ताल, उसकी वजह से माल सुना उधर से नहीं आ रहे। हमारे इंडिया में इस बार जो सोया की फसल होती है ये नवंबर दिसंबर में। फसल तो अच्छी सुनने में आ रही है, लेकिन क्योंकि गैप पीरियड पड़ चुका है तो उसकी वजह से मांग बहुत ज़्यादा है, उतनी माल नहीं आ रहा उतना। अच्छा पृथ्वीराज जी, ये बड़ी धारणा है, जैसे आपने कहा पीछे से सप्लाई कम थी, लॉकडाउन था इसलिए दाम बढ़ गए। एक बार जो दाम बढ़ जाते हैं, भले ही सप्लाई पीछे से ठीक भी हो जाए, फसल ज़्यादा अच्छी हो जाए, लेकिन दाम जो बढ़े हुए दाम हैं वो कम नहीं आते हैं। इसका क्या कारण है? क्या व्यापारी मुनाफाखोरी में लग जाता है? नहीं, मुनाफाखोरी में व्यापारी नहीं लग जाता। कारण है, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, इस समय इतना ऊंचा रेट है, तो हम सोचते हैं कहीं यहाँ से मार्केट डाउन ना हो जाए तो हम थोड़ा कम लेते हैं, लेकिन कम लेने के बावजूद मंडियों में इतनी लेने वाले इतने ज़्यादा हैं कि माल बचता नहीं है। और बीच में गैप पीरियड की वजह से गैप पीरियड कवर होते टाइम बहुत लगेगा जी, 8-8 महीने कवर होते लगेंगे। मेरे ध्यान से पूछो, ऐसे एक तेजी एक बार पहले भी ऐसी आई थी, आज से 6-7 साल पहले। वो 1 साल रेट महंगे ही रहे थे, जो कंज्यूमर को महसूस होता है कि मुझे महंगे दाम में मिल रहा है, और 1 साल के बाद रेट काबू आए थे जब नेक्स्ट फसल आ गई थी। तो अब देखिए अप्रैल में शायद नई इसकी सरसों की फसल आने वाली है। क्या आपको लगता है कि तब सरसों के दाम कम होंगे और ये जनता पर जो बोझ है ये कम होगा? देखो जी, ये तो फसल तो वैसे सुनने में अच्छी आ रही है, बाकी अभी इसमें 2-3 महीने हैं। एक फरवरी चल रहा है, मार्च और अप्रैल, कम से कम 20 अप्रैल तक जब मौसम सही रहे तो गड़बड़ ना हो तो कुछ सस्ता होगा, लेकिन बहुत सस्ता इस बार अभी नहीं होगा क्योंकि नीचे का जो बिल्कुल बेस स्टॉक था वो खत्म हो चुका है। पहले बेस बढ़ेगा, उसके बाद सस्ता होगा, लेकिन इस बार मुझे लगता है इस साल बहुत सस्ता नहीं आएगा। 10 रुपये कम हो जाए, 15 कम, शुक्र करेंगे हम तो, कोई शुक्र है भगवान का कि 10 इतने कम हो गए।
पंजाबी च कहावत ऊंट तो छानी नहीं उतरेगी बस। ऊँट से छानी उतरने के चांस लगते, ज़्यादा नहीं लग रहा क्योंकि गैप पीरियड बहुत ज़्यादा है, माल है नहीं। उसके बाद यहाँ से माल नेपाल भी जाता है, बांग्लादेश भी जाता है सरसों का तेल, वहाँ की फसलें भी कमज़ोर हैं, तो कैसे होगा, वो मुश्किल है। इसके लिए इस साल नहीं मुझे लगता कम हो। जैसी सरसों के तेल की कंजप्शन की बात करें तो अमृतसर में कंजप्शन कितनी है सरसों के तेल की? देखो जी, आइडिया है कि 300 टन, आप ये कह सकते हैं कि 30,000 40,000 किलो तेल अमृतसर में लग जाता है एक महीने में, 40,000 किलो के आसपास लग जाता है। मतलब 40,000 किलो मतलब 300-400 टन हो गया। हाँ, 300-400 टन किलो लग जाता है जी अमृतसर में, इतना लग ही जाता होगा जी। तो आप कुछ और कहना चाहें, बताना चाहें इस बारे में? देखो जी, जो चीज़ खानी है घर में थोड़ी खानी है, थोड़ा खाइए बढ़िया खाइए, मैं तो यही कहूँगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, इन्होंने बताया कि कोरोना काल में जो तेल 110 रुपये लीटर बिक रहा था उसकी कीमत 150 से पार हो चुकी है। कारण भी इन्होंने स्पष्ट बता दिया है कि प्रोडक्शन कम थी और लॉकडाउन के कारण लोग घरों में बंद रहे और तेल में पकौड़े सब्जियां खाते रहे, ज़्यादा खाते रहे, इसलिए ये तेल की कंजप्शन बढ़ी और महंगा भी हुआ। उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के बाद फसल आने से इसके दाम कम होंगे। ये तो समय ही बताएगा इसके दाम कम होंगे या नहीं होंगे। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।